The cross is a sacred sign. सलीब जो है एक जो है आशीष का कारण है। What is so special about the cross? क्रूस का ये विशेषता क्या है? It is special because Jesus gave his life for everyone on the cross. ये इसलिए विशेष है क्योंकि यीशु ने सबके लिए क्रूस में अपना जीवन को निछावर किए थे। Our hope is on the Lord Jesus Christ who gave his life on the cross. हमारे आशा प्रभु यीशु के ऊपर है जिन्होंने सलीब में अपना जान को निछावर किया था। The scripture says in 1 Corinthians 1 and verse 18, शास्त्र पहला कुरिन्थियों 1:18 में ऐसा कहती है, the cross or the message of the cross is foolishness for those who are perishing in the world. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, But for us who believe, it is the power of God unto salvation. परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। It is a hope for us to live in this world. ये जगत में जीने के लिए हमारे लिए आशा है। Today that hope is ready to come into you. आज ये आशा आपके पास आने के लिए तैयार है। As you look to the Lord of the cross, Jesus Christ. जब क्रूस की प्रभु यीशु की ओर आप निहारेंगे तब। Today is not on the cross. आज वो क्रूस में नहीं है, He defeated the powers of darkness on the cross. He is alive. परमेश्वर की खातिर आज जो जीवित है, मौत को उन्होंने हरा दिया है। And he is ready to come and listen to your cry and transform you to enjoy the life that he gives. आज वो तैयार है आपके आंसू को देखने के लिए, आपके पुकार को सुनने के लिए, ताकि आप अपना जीवन का आनंद उठा सकें। Now we have come to you as a family अभी हम एक परिवार के रूप में आपके सामने मुखातिब हुए हैं to share that life of Christ from the cross. ताकि प्रभु यीशु का सलीब से जो जीवन है उस जीवन आपके साथ साझा कर सके। Sam? We all enjoyed meditating on that series, the meditation of the cross. हम सब वो जो श्रृंखला बनाए थे क्रूस पे मनन, उस श्रृंखला बनाने वक्त हम बहुत ही आनंद लिए थे। God showed us so many truths. परमेश्वर कई सच्चाई से हमें अवगत कराए थे। And even for Shilpa, it was a big thing and a new thing that she had to go through. वो शिल्पा के लिए बहुत बड़ी बात था, उनके लिए नई बात था जिससे वो गुजर रही थी, To prepare the word from such passages. ताकि उस पैसेज से जो वचन तैयार कर रहे थे, बड़ा उनके लिए कठिन समय था। How was that experience for you? आपका वो अनुभव कैसा था? Yes, I learnt a lot from meditating from those verses. उस वचन पे मनन करने वक्त मैं बहुत कुछ सीखी थी। The most important thing was how much love God has upon each of us. सबसे बड़ी बात है कितना परमेश्वर का प्रेम हम सभी के लिए है। I learnt about how important it is for us to forgive others in this world. मैं ये सीखी और लोगों को क्षमा करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है। We see how God forgave the thief who was hanging next to him on the cross. हमने देखा जो एक चोर था और जो प्रभु के पास जो लटक रहे थे, कैसे प्रभु ने उसको क्षमा किए थे। And we also see how much people humiliated him, but he remained humble. हमने देखा लोगों ने कितना उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन वो विनम्र बने रहे थे। And it was very nice to see how many prophecies were fulfilled from the Old Testament. ये बड़ा अद्भुत बात था, पुराना नियम से कितना नबूवत पूरा हुआ था। And we can go on saying of so many things we learned in the meditation of the cross. सलीब के ऊपर मनन करने के माध्यम से हम जो कुछ भी सीखे थे उसके लिए लगातार हम बयां कर सकते हैं। It's interesting how what the Lord did for that thief. प्रभु ने उस चोर के लिए वो जो किए थे वो बड़ा अजीब बात है। He asked permission in that last second. वो अंतिम समय वो जो प्रभु से जो है वो प्रार्थना किया था, Please take me to paradise along with you when you go. जब आप स्वर्ग जाएंगे मुझे भी अपने संग लेके चलें। If it were us in that position, we'd put so many rules saying, so many days you should have followed me. अगर हम प्रभु के स्थान में होते, कई तरह का हम नियम रखते, हम कहते आपको कई सारा काम करना था। This is not allowed. ये तुम्हारे लिए जो है बिल्कुल इजाजत नहीं है। But His mercy and His grace is too big for us to understand. लेकिन उनका दया और करुणा हमारे लिए बिल्कुल समझना असंभव है। And we are also ought to follow His example in forgiveness. हमें भी उनके समान उनका दृष्टांत को पालन करना है, लोगों को क्षमा करना है।
That's why the Bible says, be quick to forgive. इसलिए बाइबल कहती है तुम्हें तुरंत क्षमा करना है। I'm sure God is giving us that attribute today. मैं निश्चित हूँ परमेश्वर अपना यही खूबी हमें आज दे रहे हैं। Only when you forgive, you can be healed. केवल जब आप क्षमा करेंगे तभी आप चंगा हो जाएंगे। So for Jesus to face death and to rise up alive, he had to forgive. यीशु को जो है मौत का सामना करने के लिए और पुनरुत्थित होने के लिए उनको क्षमा करना था। He had to be healed from his death and come into resurrection. उनको अपने मौत से चंगाई पाके पुनरुत्थित होना था। So the only way is to forgive. एकमात्र राह था माफ करना। So Jesus had that opportunity. यीशु के पास वो मौका आया And also he had the opportunity to plead for the forgiveness of sins of the whole world. उनके पास ये मौका भी मिला पूरा दुनिया का पापों का क्षमा के लिए वो प्रार्थना किए थे। So he was a sacrifice and God accepted his prayer for the forgiveness of others, for him to forgive others, and healed Jesus and raised him up from the dead. परमेश्वर प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार किए और उनकी क्षमा की प्रार्थना को स्वीकार किए और उसके बाद परमेश्वर ने उनको मौत से पुनरुत्थित कर दिया। Amazing. And the one thing that Shilpa said, he is God. और शिल्पा ने एक बात कहा वो परमेश्वर हैं And he coming and forgiving a common thief, a criminal, is amazing, his humility. वो आके एक साधारण जो है क्रिमिनल को क्षमा करना वो बड़ा अद्भुत बात था। He loves to forgive. वो क्षमा करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। And God humbles himself to come and listen to a criminal and transform that person. परमेश्वर इतने विनम्र है वो एक कैदी का प्रार्थना सुन के उनको बदल देते हैं। And how much more we need to humble ourselves and forgive others. हमें कितना खुद को दीन करके औरों को क्षमा करना है। And then we will be healed and we'll have life. तब हम चंगा हो जाएंगे, हमें भी जीवन मिल जाएगा। It's amazing. ये बड़ा अद्भुत बात है। And one other thing in Luke 23:28, which really amazed me. और एक बात जो लूका 23:28 में लिखा हुआ है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। Jesus is carrying a huge cross upon him. यीशु अपने ऊपर बड़ा सलीब को लेके चल रहे हैं। That weight alone is too hard for anyone to bear. उसका वजन बहुत ज्यादा था, कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। This was in a position where he was striped and he was beaten. उस वक्त जो है उनको चाबुक से मारा जा रहा था And it tore his skin. और उनका चर्म पूरा उघर गया था, Blood was oozing. लहू बह रहा था। He would have felt so weak. बहुत कमजोर महसूस किए होंगे। And seeing that, the ladies there were crying and weeping for him. यीशु का उस स्थिति देख के वहां की सारी महिलाएं रो रही थी। In this verse, he says, ladies, daughters of Jerusalem, उस वचन में वो कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियां, don't weep for me. मेरे लिए मत रो, Weep for yourself and for your children. अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। Look at his mind. उनका जरा मन की दशा को देखें, It was set upon us. वो हमारे ऊपर ही टिका हुआ था। He didn't bother about himself, वो अपने आप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखें, but he was worried about the children. वो बच्चों के ऊपर बड़ा तरस खाए थे। Today, he's worried about our children also. वो आज हमारे बच्चों के लिए भी चिंतित हैं। We worry thinking if once they go out, what are they going to be taught? हम चिंतित होते हैं एक बार घर से बाहर जाने के बाद वो क्या सीखेंगे, What influences are going to come and lead them astray? किस तरह का बात से वो प्रभावित हो जाएंगे, किस तरह से वो तबाह हो जाएंगे, Will they be protected? क्या वो सुरक्षित रहेंगे। Jesus said, cry for your children, I remember them. यीशु ने कहा अपने बच्चों के लिए रो, मैं उनको याद करता हूँ, I'm going to the cross for them. मैं सलीब में उनके खातिर जा रहा हूँ। Shed my blood so that my plans will be fulfilled in their lives. मैं अपना लहू को जो है गिराने वाला हूँ ताकि उनके जीवन में मेरी योजनाएं पूरी हो जाएं। I will resurrect them along with me. मेरे साथ साथ मैं उसको पुनरुत्थित करने वाला हूँ। His resurrection power will fill our children. उनकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे बच्चों के जीवन को भर डालेगी। I'm sure he will anoint us with his Holy Spirit. मैं निश्चित हूँ वो हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक देंगे। God hears the prayers of the mothers for the children. प्रभु जो है माँ जो प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना को सुनते हैं। My mother cried for my transformation years ago. कई साल पहले मेरी माँ मेरी बदलाव के लिए प्रार्थना की थी And God transformed me
Absolutely. परमेश्वर पूरी तरह से मुझे रूपांतरित कर दिए। And your mother, Evangeline, cried for all the 3 children, और आपकी माँ इवेंजेलिन उनके तीनों बच्चों के लिए पुकारी थी, fasting and praying. उपवास के साथ प्रार्थना की थी। God has blessed your souls and you are a blessing. परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दिया, आप आशीष का कारण बन गए हो। And Shilpa too. शिल्पा आप भी, She has been joined in our family through the prayers of her parents and us. आप हमारे परिवार में जुड़ गई आपके माँ बाप के प्रार्थना और हमारे प्रार्थनाओं के माध्यम से। Today, Katie, आज केटी she loves prayers. वो प्रार्थना करना पसंद करती है। When we say pray, हम जब कहते प्रार्थना करो, close her eyes. वो आंख बंद कर लेती है, And then she'll say, Amen. तब वो कहेगी आमेन। She will bless herself in the name of the Lord. वो प्रभु के नाम से खुद को आशीष देती है। Lay hands on the food and say, Lord bless. भोजन के ऊपर हाथ रख के कहती है प्रभु खाना को आशीष दें। When we lay hands on the prayer requests of the people, she'll also stretch forth her hand and pray. जब लोगों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर हम हाथ रखते, वो भी अपना हाथ बढ़ा के उसमें प्रार्थना करती है। Jesus suffered for all this to happen for our children and through our children. प्रभु यीशु हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के माध्यम से सारा काम करने के लिए खुद तकलीफ उठाए थे। The cry of the mothers, he took it to the cross माँ की पुकार उन्होंने क्रूस पे लेके गए थे and brought answers for the children. और बच्चों के लिए उत्तर को लेके आए थे। And he says, your sons and daughters will prophesy. उन्होंने कहा तेरा बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। Don't be afraid. Not only will your children be saved because Jesus paid the price, आप डरे नहीं, क्योंकि यीशु ने मोल चुकाया था। आपके बच्चे ना केवल बच जाएंगे, and he hears the mother's cries, वो माँ की पुकार को सुनते हैं, but he'll also make them prophets. वो उनको नबी बनाएंगे। May God bring this blessing upon your children now. प्रभु अभी आपके बच्चों के ऊपर वो आशीष को लेके आए। The power of the suffering of Jesus shall be enjoyed by your children, and through your children you shall enjoy them. यीशु के दुख भोग के जो सामर्थ है वो आपके बच्चों के जीवन में उतर आएगा। उसके माध्यम से आप अपने बच्चों के साथ आनंद उठाएंगे। Mom, what do you feel about the cross? माँ, आप क्रूस के बारे में क्या सोचती है? How nice this is to meditate upon the sacrifice of God. एक कितना सुंदर बात है, प्रभु के बलिदान के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। I remember one thing when I was small. जब मैं बहुत छोटी थी, एक बात मुझे याद आ गया। My church pastor used to give the sacrament and the bread to us, and he will say, you should kneel down straight and receive it with reverence. मेरे कलीसिया के जो पासवान थे, जब वो प्रभु भोज बांटते थे, वो कहते थे आपको घुटने में आके बहुत बहुत जो श्रद्धा के साथ ये दाख मधु और ये रोटी को ग्रहण करना है। And he used to sing songs about the cross. वो क्रूस के ऊपर आधारित एक गीत को गाते थे। And I used to kneel down straight and think about the sacrifice and the blood of Jesus that was shed on the cross and cry. मैं घुटनों में आके प्रभु का जो लहू है, उनका जो बलिदान है, उसके ऊपर सोच के मैं रोती थी। And I will say, Lord, thank you for you have shed your blood on the cross for me. मैं धन्यवाद देती थी, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। And I will repent and I will say, Lord, I am so sorry for all the wrongs I have done against you. मैं पश्चाताप करती थी, मैं कहती थी हे प्रभु, मेरा सारा गुनाह के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। And today I am what I am because of the sacrifice of our loving Lord Jesus on the cross. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे प्रेमी प्रभु यीशु उनका क्रूस के बलिदान के माध्यम से हूँ। The Bible says the blood of Jesus cleanses us from all sins. बाइबल कहती है प्रभु यीशु के लहू हमें सारी गुनाह से हमें शुद्ध करता है। What a blessing this is for us to be delivered because of His blood. उनके लहू के माध्यम से हम छुटकारा पाते हैं, कितना बड़ा आशीष की बात है। Our Lord Jesus has so much love for us. हमारे प्रभु यीशु के पास हमारे लिए बहुत प्रेम है। We see how sin torments the lives of people. जी हाँ, हम देखते हैं किस तरह से पाप लोगों के जीवन को परेशान या तबाह करता है। Whether it be alcoholism शायद वो शराब की आदी हो गए होंगे, or even ego and pride.
शायद आपने मन में बहुत घमंड होगा, खुद के बारे में बड़ा सोचते होंगे। the love of money. पैसों का प्यार, How when we reach for it, it may be a small thing at first, शायद शुरुआत में एक छोटी सी बात हो सकती है, but it leads our life into destruction. लेकिन हमारे जीवन को तबाह कर देती है। When it takes over, जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है, it destroys a person. एक व्यक्ति को तबाह कर देता है। So that is what we see in the Bible in Romans 6:23. वही बात हम बाइबल में रोमियो 6:23 में देख लेते हैं। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है, But what Jesus did is लेकिन जो यीशु ने किया, he carried all that sin upon himself. वो सारा पाप अपने ऊपर ले लिए थे। He said, "Cast all your burdens on me." उन्होंने कहा तुम्हारी सारी बोझ मेरे ऊपर डाल दो। And when he did that, जब उन्होंने ऐसा किया, we don't have to face that death हमें उस मौत की सामना नहीं करनी है। when he forgives us. जब वो हमें क्षमा करते हैं, That is what he did on the cross. क्रूस में यही काम उन्होंने किया था। Because of his forgiveness, उनके क्षमा के माध्यम से no matter how small or big the sin is, शायद वो पाप छोटा या बड़ा क्यों ना हो, we receive life. हम जीवन पाते हैं। It is not heading to destruction anymore. वो हमें नाश की ओर नहीं अगुवाई करती है। We see the lives of so many people who testify. कई लोग जो गवाही दें, उनके जीवन को हम देख सकते हैं। A man would come up on stage saying, "God had delivered me from alcoholism. एक मंच पे कोई व्यक्ति आके कहते हैं परमेश्वर ने मुझे शराब से आजाद किया है। Until then, I was beating my wife. My business was in failure. मैं अपने पत्नी का पिटाई कर रहा था, मेरा व्यवसाय तबाह हो गया था। But now God had delivered me, forgave all my sins, and I have a successful business. लेकिन प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मुझे आजाद किया। अभी मेरे पास एक सफल व्यवसाय है, Wonderful family life, एक बेहतरीन पारिवारिक जीवन है, beautiful children, खूबसूरत बच्चे हैं, and they are all settled. और वो सब जो है अपने जीवन में स्थापित हो गए हैं। So we see how the life of Jesus transforms our life. हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन किस तरह से हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। And from being bound in all the sin and all the curses, हम सारे पाप और सारे श्राप से जब बंध जाते हैं, because of the grace of God. परमेश्वर की अनुग्रह के माध्यम से बच जाते हैं। So when the blood of Jesus Christ cleanses our sin, the curses also go, we become a new creature. जब प्रभु यीशु के लहू हमारे पापों से हमें धो देती है, सारा श्राप चला जाता है, हम नया सृष्टि बन जाते हैं। Yes, we according to 1 Peter 2:9 we become a royal priesthood. जी हाँ, पहला पतरस 2:9 के अनुसार हम जो है राजकीय पदधारी बन जाते हैं। Because Christ is royalty, we also become royalty. क्योंकि यीशु राजकीय हैं, हम भी राजकीय बन जाते हैं। Wonderful. Now, just like we have been touched by what Jesus did on the cross, जिस तरह से प्रभु यीशु ने सलीब में जो किया, हमको स्पर्श मिला है, there is someone with us who will share also what happened to her, because of what Jesus did for her. हमारे साथ कोई ऐसा है, प्रभु यीशु ने उनके साथ क्या किया उसके बारे में वो गवाही देने वाली है। So let's listen to that. आइए हम उनको सुन लेते हैं। I am happy to have rejoined my wife, मैं अपने पत्नी के साथ पुनर्मिलित होकर बड़ा खुश हूँ। and we welcome dear sister. प्यारी बहन, आपका स्वागत है। Can you mention your name and where you're coming from? अपना नाम पता बताइए जरा। मेरे नाम क्रिस्पिन शाइनी है। मैं मुंबई में पैदा हुई थी। So we've been talking about the love of God that He showed on the cross. क्रूस पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बात कर रहे थे। How did you experience it in your life? अपने जीवन में आपको कैसा अनुभव था? मेरे 9वीं कक्षा में मुझे टाइफाइड की बीमार हो गई थी और मैं 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह पढ़ नहीं पा रही थी। मुझे बुखार था, इसी कारण मैं एग्ज़ाम में अच्छी तरह लिख नहीं पाई, और जब मेरा रिज़ल्ट आया मुझे ऐसा पता चला कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई करके मुझे वापस वो 9वीं कक्षा को वापस पढ़ना पड़ेगा करके मुझे इतना बुरा लगा कि मैं मेरे 9वीं कक्षा को वापस और एक साल क्यों मैं पढ़ूँ करके। All your friends would go to the next class and आपके सारे मित्र अगले क्लास में पहुंच गए होंगे। मेरे सारे जो दोस्त हैं वो 10वीं कक्षा में जा रहे हैं और मैं सिर्फ 9वीं कक्षा में रहूँगी करके मुझे बहुत ही बुरा लगा। Were you angry with God?
क्या आप परमेश्वर से क्रोधित थी? मैं बहुत ही गुस्सा में थी क्योंकि मुझे इस बीमार के कारण मैं परीक्षा में फेल हो गई थी और तब मैं प्रभु के पास जाके रोने लगी और क्रूस को देख के रोने लगी। तब प्रभु ने मुझे उत्साह दिया और इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य यह है कि मैं 9वीं कक्षा वापस नहीं पढ़ी। मुझे तुरंत 10वीं कक्षा के लिए भी एडमिशन मिल गया था और 10वीं कक्षा में मुझे अच्छे मार्क्स से मैंने पास हुआ था। Wow. You had given your life into the hands of the Lord, saying, Lord, carry me. आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप के कहा, प्रभु आप मुझे उठा के लेके चले। And the power of God, you saw it in your life immediately. आप तुरंत परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में महसूस की थी। और प्रभु की छुटकारा की स्पर्श तब मैंने महसूस किया और ये बहुत ही मूल्य समय है क्योंकि तभी मैंने यीशु का स्पर्श को महसूस किया था और ये मेरा जीवन में बहुत ही महत्व समय है क्योंकि तब मैंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के मापत मैंने मान लिया था। इसके बाद 2012 में मेरे एक बहन जो है वो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उसी समय हम बहुत ही कष्ट के राह से गुजर रहे थे और हमारे परिवार के लिए एक बड़ा दुख की कार्य थी और हम इस बारे में सोच रहे थे हम किस तरह से इस दुख से हम पार करके आएंगे। प्रभु ने मेरे पिता से कहा कि शाइनी जो है उसके हायर एजुकेशन कारुण्या से करना चाहिए और उनको भी ज़रा बुरा लगा इस बात से क्योंकि यही जो समय है उनके एक बेटी को उन्होंने खो गए थे और मैं उनकी एक ही सहारा हूँ और मैं प्रभु की आज्ञा पालन की। मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रभु से पूछी तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन बताए। मैं डॉक्टर पॉल दिनकरन सर के हाथ से एक अवार्ड मिल रहा है। यही दर्शन को देखने के बाद मैंने प्रभु की आज्ञा को पालन की और मुझे कॉन्फर्मेशन मिला कि मैं कारुण्या जाना है करके। और तब 2013 साल में मुझे MA इंग्लिश कोर्स के लिए मैंने कारुण्या में एडमिशन लिया था। उस समय प्रभु मेरा जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आया क्योंकि यही जो जगह है इसी जगह पर मैं आके क्रूस के पास आती थी। उस समय प्रभु ने मुझे आशा दिलाए और मुझसे कहा मेरे बेटी तू रो मत, मैं तुम्हें बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करूँगा। और ये क्रूस मुझे आशा दिलाया और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आशीर्वाद के तौर पर इस्तेमाल किए। और इसी समय जब मैंने MA इंग्लिश कोर्स की ख़त्म हुआ मुझे रैंक होल्डर अवार्ड डॉक्टर पॉल दिनकरन सर की हाथ से मिली। प्रभु इस तरह वो दर्शन को पूरा किया। उसके बाद मैंने कारुण्या में ही MPhil किया, वो भी कॉन्वोकेशन फंक्शन में। उसके बाद मैंने कारुण्या में ही MPhil किया और PhD भी कारुण्या से ही किया। डॉक्टर शाइनी, वंडरफुल, बेहतरीन बात है। और अभी मैं जो है कारुण्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के काम कर रही हूँ और वार्डन भी हूँ। मेरे आसपास अभी मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लड़कियाँ हैं, उनको मैं आशा दिला सकती हूँ, उनसे मैं अच्छी तरह बात कर सकती हूँ। ऐसे एक साल था कि मैं जब सोच रही थी मैं 10th ख़त्म कर सकती हूँ क्या कर मगर आज जो है प्रभु मुझे डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल करने के लिए मदद किया है और आज मुझे बहुत सारे लोगों को आशीर्वादित पात्र रखा है और मैं प्रभु की शुक्रिया और धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि मैं एक टूटी हुई पात्र को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। Thank you for sharing this, Dr. Shaini, and we are so proud of you. डॉक्टर शाइनी, आपकी गवाही के लिए आपका धन्यवाद। आप पे हमें नाज हैं। My friend, this can happen to you मेरे मित्रों, ये आपके साथ भी होने वाला है because Jesus Christ has paid the price for you to live. क्योंकि आपके जीवन के लिए यीशु ने जो है मोल को चुकाया है। For the persons who trust him, there is no loss in this world, जो व्यक्ति प्रभु यीशु पे भरोसा करते हैं उसके लिए इस जगत में कोई नुकसान नहीं है, but he will bless them in double measure. लेकिन उनको उन्होंने दुगना रूप से आशीष देंगे। Just surrender your life as we pray with you now. जब आपके साथ हम प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन उनके सामने आप सौंप दें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, receive the soul and the life of your children. अपने बच्चों का आत्मा और जीवन को आप ग्रहण कर लें। Wash their sins with your blood, Lord. अपने पवित्र लहू से उनका गुनाह को आप शुद्ध कर दें। Remove the curses. श्राप को हर लें।
Wipe away their tears. उनके आंसुओं को पोंछें, Empower them with your Spirit, Lord. अपने आत्मा के माध्यम से उन्हें सामर्थ्य बनाएं। Let them rise up as you rose up from the death, from the cross. जैसे सलीब से नीचे उतर के आप जीवन में पुनरुत्थित, Let them rise up as you rose up after death on the cross. जैसे आप जो है अपनी मौत के बाद, सलीब में मौत के बाद पुनरुत्थित हुए थे, वो भी पुनरुत्थित हो जाएं। Because of your sacrifice, let them live, live, live and be blessed. आपके बलिदान के माध्यम से वो जिए और आशीष का कारण बन जाएं। We commend them to your loving care. आपके प्रेमी देख रेख में उनको सौंपते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless you. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दें। May the power of the cross give you great triumph in this world and hope. क्रूस का सामर्थ इस जगत में आपको महान उम्मीद और महान जीत दिलाएं।